ایس اے کے کنونشن ہال، شادی جیسے بھی ہو، ولیمہ ہو تو ایس اے کے کنونشن ہال میں ہو۔ محمد یاسین ہوم اپلائنسز ہول سیل اینڈ ریٹیل شاپ، ایس ایس کنسلٹنسی، گھر بنائے مضبوط، ڈیزائننگ بھی۔ 2014 سے لے کر آج تک ہندوستان میں اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ، اس کے اندر کسی بل کے لیے، کسی قانون بنانے کے لیے جو ایک کنڈیشن پریسیڈنٹ کے طور پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں، میٹیریل جمع کیا جاتا ہے، ایکسپرٹ سے اوپینین لیے جاتے ہیں، ساری چیزوں کا جائزہ لے کر پارلیمنٹ میں مباحثے کے لیے رکھا جاتا ہے، آخر میں قانون بنتا ہے۔ اس چیز کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ قانون، عدالت اور عوام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے یا خطرناک چیز ہے۔ قانون سوچ سمجھ کر سماجی جائزے سے پوری طریقے سے سماج کے بنیادی اصولوں کا، انسانیت کا، اخلاق کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں کی ضرورت کے اوپر قانون بنائے جاتے ہیں۔ قانون حکومت کو یا قانون کسی سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، I belongs to the legal fraternity and the legal fraternity all over India. Not only all over India, at international also we have got a reputation and respect. Even though the judiciary and all the legal fraternity has been neglected، اس طریقے سے جو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے قانون بنائے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بات قومی سطح پر نہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی ہے کہ ایئر پولوشن ہو رہا ہے، واٹر پولوشن ہو رہا ہے۔ جب ایئر پولوشن ہو سکتا ہے، واٹر پولوشن ہو سکتا ہے، تو لیگل پولوشن ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ لیگل پولوشن بھی ہو رہا ہے، لیکن لیگل پولوشن کس حد تک نقصان دہ ہے واٹر پولوشن کے مقابلے میں اور ایئر پولوشن کے مقابلے میں، اس کا جائزہ لینا کچھ خاص مخصوص لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ میں نچلے طبقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں انٹلیکچوئل کی، اسکالرس کی، اور جو انالسٹ ہیں اور جو فلاسفرس ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ میرا بیان ان کے لیے ہے۔ یہ سرکولر کی دنیا میں ہم کب تک جئیں گے اور کب تک عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ اسی طریقے کا ایک سرکولر ایسے بہت سے آتے رہیں گے، لیکن ایک سرکولر کرناٹکا حکومت نے بھی جاری کیا ہے، جس میں ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ بہت اچھا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کا بادشاہ ہوتا ہے، ضلع کا شہنشاہ ہوتا ہے، اس کو کل اختیارات ہوتے ہیں، ضلع کی انتظامیہ کے لیے پورا ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر اوقاف بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کیا یہ ایڈیشنل ڈیوٹی نہیں ہے ڈپٹی کمشنر کے لیے؟ کیا یہ ایڈیشنل ڈیوٹی ہے، یا اصل بات کو، مسلمانوں کے مدعے کو ہٹا کر ڈیویٹ کر کے کسی اور دوسری جگہ لے جایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا اوقاف کا مسئلہ ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس مسئلہ ہے۔ جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل باڈیز اور اتھارٹیز ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن ہے، کمپٹرولر آٹولر جنرل آف انڈیا ہے، اور بہت سے انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، یہ بہت انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس ایجنسیز ہیں، کانسٹیٹیوشنل ہیڈس ہیں۔ اسی طریقے سے اوقاف بھی انہی اداروں میں شامل ہوتا ہے جو انڈیپینڈنٹ اور آٹونومس ہے۔ اب اس کو ایک ایڈمنسٹریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ بات الگ ہے، لیکن اس سے جو لیگل پولوشن ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا بہت ہی آسان جواب ایک وکیل کی حیثیت سے عام لوگوں کے سامنے ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دیے گئے ہیں۔ آسان مسئلہ یہ ہے کہ جب گورنمنٹ سرکولر بنائی ہے تو گورنمنٹ کے سرکولر کو چیلنج کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ہماری عدالتیں انٹرنیشنل لیول کے برابر کی ہیں۔ ہندوستان کی عدالتوں کو انٹرنیشنل لیول پر بڑے ہی غور و فکر والی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہندوستان کی عدالت میں اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، یہ آرڈر کو، گورنمنٹ آرڈر ہو یا سرکولر ہو یا کوئی نوٹیفیکیشن ہو۔ اس سے مسلمانوں کو کوئی پریشان ہونے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ انٹرفیئرنس ہے۔ لیکن ایسا کرنے سے یہ صرف اور صرف، میں جہاں تک سمجھتا ہوں، یہ میرا ذاتی خیال ہے، یہ پولیٹیکل مائلیج ہے یا پولیٹیکل گین ہے۔
पॉलिटिक्स के साथ साथ जो लीगल फ्रेटर्निटी को, लीगल प्रोफेशन को, लीगलिटी को जो पल्यूटेड किया जा रहा है, ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसका लिहाज उन लोगों को करना चाहिए जो सर्कुलर बनाते हैं, सर्कुलर निकालते हैं, सर्कुलर के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं, सर्कुलर बनाने के अथॉरिटीज़ होते हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं। हम ये जो बना रहे हैं इसमें पब्लिक इंटरेस्ट कितना है। डेमोक्रेसी में हमेशा पब्लिक को देखा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। अगर किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को नुकसान हो रहा है या किसी के मामले में इंटरफेरेंस, मदाखलत हो रही है, तो ऐसे चीज़ों का परहेज़ करना भी सर्कुलर बनाने वालों के लिए, नोटिफिकेशन वालों के लिए, गवर्नमेंट आर्डर बनाने वालों के लिए ज़रूरी बनता है। ना उनकी अखलाकी नहीं बल्कि क़ानूनी ज़िम्मेदारी भी है। जब आप क़ानूनी ज़िम्मेदारी नहीं करते हैं, क़ानून का एक नया मोड़ दे रहे हैं, क़ानून में एक नया पोल्यूशन लेकर आ रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हम ये सर्कुलर बनाकर बहुत खुश हुए हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। इससे पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और इस पोल्यूशन के ज़िम्मेदार कौन होंगे? इसके अंदर कब रिफॉर्मेशन आएगा, इंटरनली कब करेक्शनल मेथड्स लाए जाएंगे। ऐसे मौके पर हुकूमत को जो करना है हुकूमत करेंगी, पॉलिटिशियंस को जो करना है पॉलिटिशियंस कहेंगे। मैं इसी प्लेटफॉर्म से, इसी स्टडी से A1774 के, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, अब भी इसी प्लेटफॉर्म से, इसी 774 से बताना चाह रहा हूँ। मेरा एक डेफिनेशन है या मेरा एक इक्वेशन है। वो इक्वेशन ये है, व्हाट इज़ द मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन और डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप क्या है? मेरे नज़दीक इसका सिंपल और आसान सा जवाब ये है, पॉलिटिकल लीडर वो है जो कभी औक़ाफ़ का सहारा नहीं लेता, औक़ाफ़ को इंडिपेंडेंट छोड़ देता है। अगर आप औक़ाफ़ को एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑर्गन बना दिए तो आप ना रिप्रेजेंटेटिव हैं ना लीडर हैं। ये हमारा करप्शनल मेथड है। मैं इसके बावजूद बोल रहा हूँ, मैं ये बता चुका हूँ, अब भी डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, सर्कुलर को चैलेंज किया जा सकता है। इससे हटकर मुसलमानों के कौमी मफाद के लिए और मिल्लत के लिए बोलना चाह रहा हूँ। जो लोग अपने आप को सियासतदान बोलते हैं या सियासत से अपने रहनुमा होने का चैलेंज करते हैं, क्या उनकी रहनुमाई बग़ैर औक़ाफ़ के मुमकिन है? अगर आप अपने आप को रहनुमा या लीडर मानते हैं तो बग़ैर औक़ाफ़ के कीजिए सियासत। ये महज आपके औक़ाफ़ को इस्तेमाल करने की वजह से आज हुकूमत औक़ाफ़ को इस्तेमाल कर रही है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो औक़ाफ़ भी इस्तेमाल नहीं करती, हुकूमत भी इस्तेमाल नहीं करती थी। औक़ाफ़ को खिलौना बनाने वाले सबसे पहले आप हैं। इंटरनल चेकिंग, इंटरनल रिफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हुकूमत क्या गलती करती है उसको तो हम अदालत में चैलेंज करेंगे, अपना आदमी जब गलती करता है उसको कौन चैलेंज करेगा? आज वक्त है, आज वक्त और हालात हमको चारों तरफ से घेर रहे हैं। हमको ज़रूरी है कि हम अपने अतराफ़ का जायज़ा लें। ऐसे सर्कुलर, ऐसे नोटिफिकेशन और ऐसे गवर्नमेंट आर्डर आते रहेंगे। हम कब अपने आप को बदलेंगे? हमारा मतलब मुसलमान और मुसलमानों के रहनुमा कब बदलेंगे और कब अक्ल के दाढ़ लेंगे? कब हम समझेंगे कि ये इदारा, ये ऑटोनोमस बॉडी, ये इंडिपेंडेंट बॉडी औक़ाफ़ को, इसको ऑटोनोमस बॉडी ही रहने दिया जाए, हमारी सियासत को इससे दूर रखा जाए। आप सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, जब हुकूमत इंटरफेयर करती है तो तकलीफ़ होती है। क्यों भाई? दो माने क्यों, दो पैमाने क्यों? एक के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए। हमारे सियासतदानों को भी औक़ाफ़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, सच्चर कमेटी रिपोर्ट तो मुसलमानों को मालूम है, लेकिन मानपाड़े ने जो कर्नाटक में, कर्नाटक के ताल्लुक़ से, कर्नाटक के औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से जो रिपोर्ट दी है, ये सच्चर कमेटी से भी बड़ी रिपोर्ट है। क्या इससे आँख नहीं खोल सकता कर्नाटक का मुसलमान? कर्नाटक के मुसलमानों को इसके कुछ अकल नहीं मिलती क्या? कर्नाटक के रहनुमा, कर्नाटक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको ये नहीं मालूम है? आप अपनी अक्लमंदी से, अपनी होशियारी से इस बिल को असम्बली में या काउंसिल में आने नहीं दिए, ठीक है, लेकिन ये तो रिपोर्ट है और नंगी रिपोर्ट है। सारे लोग मानते हैं, सारे लोग जानते हैं। मान पड़े की रिपोर्ट को इनकार करें आप अपने तौर पे अपने नाजायज़ काम के लिए इस्तेमाल करें औक़ाफ़ को। जब डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दिए जा रहे हैं तो तकलीफ़ हो रही है, ये तकलीफ़ नहीं,
इस तकलीफ को भी बर्दाश्त कीजिए जो एक मुसलमान होने के नाते मुसलमान औकाफ को तकलीफ दे रहा है। हमारे लिए इंटरनल करेक्शन और इंटरनल रिफॉर्मेशंस बहुत ज़रूरी हैं, ये और बहुत से मसले हैं मैं जिनके ऊपर जाना नहीं चाहता। मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि ये जो सर्कुलर है, जो गवर्नमेंट का आर्डर है जिसमें डिप्टी कमिश्नर को इख्तियारात दिए गए हैं, इसको चैलेंज करना हर फर्द का काम है। और मैं चाहूँगा कि इसमें हाई कोर्ट के एडवोकेट के सर्विसेज खिदमात लेकर, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बहुत से साथी भी हैं, जिनमें मैं कुछ लोगों का नाम बताना चाह रहा था, मैं उनको मुनासिब नहीं समझता इस मौके पर बताना। वो लोग PIL और रिट पिटीशन डालने के मुसलमानों के हक़ में, मुस्लिम कौम के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं, उनके साथ रुजू होकर उनसे मिलकर इसको चैलेंज किया जा सकता है। मेरा ये जो बयान है, इस बयान के ऊपर अगर किसी को कुछ सवाल करना है या किसी को कुछ कमेंट्स करना है या मेरे बयान में कुछ कमी रह गई है जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों को, मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, कहीं भी किसी वक्त भी पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं।